ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे साइंस ऑफ सोल वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स का समाधान है ना। विशेष रूप से जो आज की डेट में हम देख रहे हैं, युद्ध चल रहा है इजराइल और फलस्तीन हमास के बीच में। तो इस प्रकार से, क्योंकि बॉडीली कॉन्सेप्शन पे बेस्ड है। ओके, तो जरा इधर से पढ़ते हैं। ये पढ़िए, द फाइव ग्रेट एलिमेंट्स। कौन पढ़ेगा? यस, पढ़िए आशुतोष, यू कैन स्टार्ट। The five great elements: false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses, the mind, the 5 sense objects: desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms, and conviction. All these are considered in summary to be field of activities and its interactions. पर पढ़िए। From all the authoritative statements of the great sages, the Vedic hymns, and the aphorisms of the Vedanta Sutra, the component of this world are earth, water, fire, air, and ether. These are the 5 great elements, the Mahabhuta. Then there are false ego, intelligence, and unmanifested stage of the 3 mode of nature. Then there are 5 senses for acquiring knowledge: the eyes, ears, nose, tongue, and touch. Then 5 working senses: voice, legs, hands, the anus, and the genitals. Then above the senses there is the mind within, and which can be called the sense within. Therefore, including the mind, there are 7 senses altogether. Then there are the 5 objects of the senses: smell, taste, warmth, touch, and sound. Now, the aggregate of these 24 elements is called the field of activity. If one makes an analytical study of these 24 subjects, then he can very well understand the field of activity. Then there is desire, hatred, pleasure, and pain, which are interaction representation of the 5 great elements in the gross body. The living symptoms represented by consciousness and conviction are the manifestation of the subtle body, mind, ego, and intelligence. These subtle elements are included within the field of activities. The पहले इसको five पढ़ लेते हैं, इसको फिर मैं आपको और समझाता हूँ। पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या बोलना चाह रहे हैं। यस, पढ़िए। the 5 great elements are a gross representation of the subtle false ego. They are a representation in material conception. Conscious Consciousness is represented by intelligence, of which the unmanifested state is the
three modes of material nature. The unmanifested three modes of material nature is called pradhana. One who desire to know the 24 element in details along with their interactions should study the philosophy in more details. In Bhagavad Gita, a summary only is given. The body is a representation of all these factors, and there are changes of the body which are six in number. The body is born, it grows, it stays, it produces byproducts, then begin to decay, and at the last stage it vanishes. Therefore, the field is a non-permanent material thing. However, the क्षेत्रज्ञ, Ketragya, the knower of the field, its proprietor is different. ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत कुछ महत्वपूर्ण सीखने वाले हैं आप लोग। ये सुमन मतलब क्या? साई सुमन, तुम यहाँ हो क्या? प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो बेसिकली आज हम चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फिलॉसफी का। इसको कहते हैं, आप ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, है ना, और नोट्स के स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आपकी सुविधा अनुसार। ठीक है, तो आज हम जो देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड सांख्य फिलोसॉफी। ये वर्ड सुना है, सांख्य? हाँ प्रभु जी, सुना है। सुना है सांख्य फिलोसफी? क्या होता है सांख्य फिलोसफी? प्रभु जी, ट्रुथ को जानना, और क्या बोलते हैं, कुछ एजम्पशन से। ओके, संख्या मतलब क्या होता है? संख्या, प्रज्ञान, संख्या मतलब नंबर्स। नंबर्स, है ना, या काउंटिंग, है ना। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, पूरे इस संसार का एनालिसिस कर लेंगे काउंटिंग करके। ठीक है, कैसे का एनालिसिस करेंगे? चलो देखिए, दो वर्ड्स बताए हैं, एक है बॉडी और एक है सोल। बॉडी का नेचर क्या है और सोल का नेचर क्या है? बॉडी के विषय में कहा गया है टेम्पोररी, और सोल के विषय में क्या कहा गया है? परमानेंट, है ना। बॉडी इज टेम्पररी एंड सोल इज परमानेंट, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉडी इज चेंजेबल एंड सोल के लिए अनचेंजेबल। यस और नो? और क्या डिफरेंस है बॉडी और सोल में? अनचेंजेबल, यस। ओके, और बॉडी और सोल में क्या डिफरेंस है? बॉडी is made up of matter, but soul is spiritual, yes, spirit. Body is actually, इसको लिखना चाहिए, body is made up of dead matter actually, but soul is by nature spiritual. समझ रहे हैं? बस सही है गलत है? Body is made up of dead matter, but the soul is spiritual. Body itself doesn't have consciousness. Body itself doesn't have consciousness.
but the consciousness comes from soul. समझ रहे हैं? कॉन्शियसनेस कम्स फ्रॉम सोल. ये सब तो जानते हैं आप, यस और नो? इसमें कोई डाउट है? ये डिफरेंस हमने किया है बॉडी और सोल में, है ना? आप लोगों ने पोस्टमार्टम की वीडियो देखी? पोस्टमार्टम रात को नींद नहीं आएगी? It's advanced. This is Gaurav. And you know, जब किसी डेड बॉडी की पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी की जाती है, तो उसके हाथों की स्किन को किसी ग्लव की तरह अपने हाथों में पहनकर फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं. Now that sounds gross, right? बट मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर सीधा सीधा डेड बॉडी के हाथों से ही उंगलियों की निशानी क्यों नहीं ले ली जाती? यूं ऐसे घुमाकर खाना खाने का क्या मतलब हुआ? I will get back to you. और उससे पहले मैं ये भी छोड़ो. देखने की इच्छा है क्या आप लोगों की? देख के डर लग रहा है मुझे तो. तो जब हैं, तो जब पोस्टमार्टम होता है, छोड़ो यार, अपन नहीं जाएंगे. तो डर डर लगता है ना. वो शरीर, वो मृत शरीर है, तो वो मृत शरीर पहले चलायमान था. क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोल थी. यस और नो? हम लोग बोलते हैं, एक जनरल कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं, हम बोलते हैं ही पास्ड अवे. सुना ये वर्ड? प्रज्ञान, सुना ये वर्ड? ही पास्ड अवे. हाँ हु प्रभु पास्ड अवे? हु पास्ड अवे? The soul. बॉडी पास्ड अवे और सोल पास्ड अवे? Soul passed away. The soul passed away because body is still there. Body is still there, but who passed away? Soul passed. समझ रहे हैं? तो ये तो हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है. अब एक भगवत गीता को भगवत गीता में एक बड़ी फिलोसफिकल तरीके से समझाया गया है. एक वर्ड बोला गया है क्षेत्र. क्षेत्र. और एक वर्ड बोला गया है क्षेत्रज्ञ. क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ. ये वर्ड सुना है? आप लोग जानते हैं वर्ड? सुना है पहले कभी आपने? क्षेत्र क्या होता है? प्लेस. प्लेस, या इसको बोलते हैं फील्ड, है ना? प्लेस, फील्ड और प्लेस. और क्षेत्रज्ञ मतलब ज्ञ मतलब क्षेत्रज्ञ मतलब समझ रहे? क्षेत्रज्ञ मतलब क्या लिखा है मैंने आशुतोष? Knower of place and field. हाँ, नोयर, प्लेस और फील्ड. अमितेश समझ आ रहा है? क्षेत्र मतलब प्लेस, प्रभु जी. चित्र मतलब फील्ड, और क्षेत्रज्ञ, ज्ञ वर्ड लग गया, ज्ञ, है ना? जो क्षेत्र को जानने वाला है, नोअर ऑफ द फील्ड. तो ये क्या चर्चा हो रही है? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ. समझिए, इस बॉडी को कहा जाता है क्षेत्र, और सोल को कहा जाता है क्षेत्रज्ञ. क्षेत्र को जानने वाला, फील्ड को जानने वाला. जानने वाला मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक माचिस की तीली जलाऊंगा और प्रज्ञान की बॉडी में टच करूंगा, या मैं एक आयरन रॉड को गर्म करूंगा और अमितेश की बॉडी में टच करूंगा, तो अमितेश किसको फील होगा?
प्रभु जी आयरन रॉड हमको ज्यादा होगा। आपको फील होगा भाई, मैंने आयरन रॉड जी गर्म प्रभु। करी और आपकी बॉडी में टच करी, आप फील करेंगे? जी प्रभु जी। अच्छा, मैं वही आयरन रॉड अपनी बॉडी में टच करूंगा तो क्या आप फील कर पाएंगे? नहीं प्रभु जी। नहीं। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आई एम द नोअर ऑफ माई बॉडी एंड यू आर द नोअर ऑफ योर बॉडी। समझ रहे हैं? आपके पेट में दर्द होगा तो आप फील करेंगे, और मेरे जी पेट प्रभु में दर्द होगा तो मैं फील करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बॉडी का नोअर हूं, आप आपकी बॉडी के नोअर हैं। जी। जी प्रभु जी। एक्चुअली फील कौन कर रहा है? सोल फील कर रही है, या वो व्यक्ति फील कर रहा है। तो क्षेत्र को जानने वाला कहलाता है क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्र मतलब बॉडी। तो भगवान की तरह अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र की क्या है? तो भगवान कह रहे इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते। ये शरीर क्या है? मैं वो श्लोक दिखाता हूं आप लोगों को। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते। इदम शरीरम कौन्तेय। भगवान कह रहे हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। एतज्जो वेति तत् प्रभु प्रभु प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विधा। अर्जुन ने पूछा, क्या पूछा? पढ़ो इसका ट्रांसलेशन प्रज्ञांत। ओ माय डियर कृष्णा। Oh my dear Krishna, I wish to know about the Prakriti, एक तो उन्होंने प्रकृति के Purusha, बारे में पूछा, और Purusha, द एंजॉयर। and the field, and the enjoyer, and the field, and the knower of the field, and of the knowledge, and the object of knowledge. कितने The क्वेश्चन पूछे supreme अर्जुन ने? person, अर्जुन ने कितने क्वेश्चन पूछ लिए? क्या कितनी चीजें जानना चाहता है अर्जुन? 6 चीजें। प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, है ना, ज्ञेयम, मतलब जानने योग्य क्या है। ये 6 चीजें अर्जुन ने पूछा। अब भगवान आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर दे रहे हैं? the supreme personality of Godhead said, "This body, O son of Kunti, is called the field, and one who knows this body is called the knower of the field." यस, 2 वर्ड हो गए। क्या क्या बोल दिए भगवान ने? कि ये शरीर क्या है? क्षेत्र है। और शरीर को जानने वाला क्या है? क्षेत्रज्ञ। ठीक है, क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। ठीक है, ओके। मतलब अभी आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर में क्षेत्रज्ञ क्या है, तो क्या है? आत्मा क्षेत्रज्ञ। आत्मा जानती है कि शरीर में क्या चल रहा है, आत्मा फील कर पा रही है, आत्मा समझ पा रही है। आपके शरीर के आप क्षेत्रज्ञ हैं, मेरे शरीर का मैं क्षेत्रज्ञ हूं। लेकिन एक ऐसा क्षेत्रज्ञ भी है जो आपके शरीर को भी जानता है, मेरे शरीर को भी जानता है। वो कौन है? भगवान। भगवान। यस, परमात्मा। परमात्मा। ये ऐसे क्षेत्रज्ञ है जिनको आपकी बॉडी का भी नॉलेज है, मेरी बॉडी का भी नॉलेज है। तो इसलिए कितने प्रकार के क्षेत्रज्ञ हो गए? कितने प्रकार के क्षेत्रज्ञ हो गए अमितेश? प्रभु जी 2 प्रकार। 2 प्रकार के। कौन कौन? वन हु नोज हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड वन हु नोज बोथ एवरीवन। तो कौन है? मतलब वो 2 क्षेत्रज्ञ कौन कौन है? प्रभु जी एक तो हो गए हम लोग इंसान, दूसरा भगवान इंसान नहीं, आत्मा। आत्मा। शरीर में रहने वाले व्यक्ति, वो आत्मा एक क्षेत्रज्ञ है और दूसरे क्षेत्रज्ञ भगवान है। पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे। ओशियन ऑफ भारत, हे भरतवंशी। ओशियन ऑफ हाँ, Ocean of Bharata, you should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion.
यस, अब भगवान ने क्या बोल दिया कि तुम ये भी जानो कि आई एम ऑल्सो द नोअर ऑफ ऑल नोअर इन ऑल दी बॉडीज, मैं भी इन सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ हूँ। तो इसलिए कितने प्रकार के क्षेत्रज्ञ हो गए? 2 प्रकार के हो गए, एक आत्मा एक क्षेत्रज्ञ है और एक परमात्मा क्षेत्रज्ञ, 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने शरीर को जानता है, लेकिन परमात्मा सभी शरीरों को जानते हैं। समझ आए क्वेश्चन? पॉइंट समझ आ रहा है? सुमन जी, चल रहा है चर्चा? शिवम, समझ आ रहा है क्या चर्चा चल रही है? हाँ प्रभु जी। क्या चर्चा हाँ चल प्रभु। रही है शिवम? क्या चर्चा चल रही है? प्रभु जी यही कि हम सोल हैं, बॉडी नहीं है, और क्या बोलते हैं कि दो चीजें होती है, बॉडी और सोल होता है। और सोल जो होता है सोल जो होता है वो क्या बोलते हैं, वो जो मटेरियल चीज है उससे नहीं बनी होती है, वो स्पिरिचुअल होती है। ओके। और 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 भगवान जो होता है वो खुद को भी और हमारे सोल को भी जानते हैं। नहीं, यहाँ थोड़ा गड़बड़ बोल दिया। कौन किस सही बोलेगा? प्रज्ञांत, ये वाला पॉइंट को थोड़ा सही बोलो। क्षेत्रज्ञ क्या होता है, थोड़ा समझाओ। उसका मतलब है वो जो कि अपने शरीर के बारे में जानते हैं, जो कि हम हैं हाँ, क्षेत्रीय। और क्षेत्रज्ञ है जो कि भगवान हम है क्या जो है? कि हम हमारे क्या बारे है? में जानते हैं। हम क्या है? क्षेत्र क्षेत्रीय जो बॉडी। नहीं प्रभु, गड़बड़ हो रही है। सही करो उसको। कौन आशुतोष क्या बोल रहा है? थोड़ा सा करेक्शन करो। जी क्षेत्र प्रभु क्या है, जी। क्षेत्रज्ञ क्या है? जी, क्षेत्र जो है वो हमारा बॉडी है। यस। एंड क्षेत्रज्ञ मतलब बॉडी को जो जानता है, मतलब वो आत्मा जो सोल है उसे बोल रहे ओके। हैं क्षेत्रज्ञ। हाँ, तो कितने प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं? 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं, कौन कौन? एक आत्मा है और एक परमात्मा है। यस, 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ, इंडिविजुअल सोल। अच्छा प्रज्ञात, आप क्या हो, बॉडी हो कि सोल हो? सोल। सोल, तो आप भी क्या हो गए, क्षेत्रज्ञ हुए कि नहीं हुए? हाँ, कि लेकिन किसके क्षेत्रज्ञ? बॉडी के। किसकी बॉडी की? मेरी बॉडी के? नहीं, खुद के बॉडी के। हाँ, आप क्षेत्रज्ञ आपकी बॉडी के, आशुतोष क्षेत्रज्ञ उसकी बॉडी का, अमितेश क्षेत्रज्ञ उसकी बॉडी का, लेकिन कृष्णा किसके क्षेत्रज्ञ हैं? सबकी बॉडी का। सबकी बॉडी। ये समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है? हाँ, इतना समझ गए क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है? अब हाँ, अब ये समझिए कि क्षेत्र बना कैसे है, क्षेत्र किन चीजों से बना है। ये क्षेत्र किन चीजों से बना हुआ है, इसका एनालिसिस करना चाहिए। तो सबसे पहले क्षेत्र, इसको हम संख्या में काउंट करेंगे, काउंटिंग करेंगे, इसलिए क्योंकि हम काउंटिंग करेंगे। इसको कौन सी फिलॉसफी कहते हैं? सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी को सांख्य फिलॉसफी क्यों बोलते हैं शिवम? कि वो जी सांख्यिक मतलब होता है नंबर, और हम काउंट कर सकते हैं। हाँ, तो हम पूरे ये क्षेत्र किन वस्तुओं से बना हुआ है उसको काउंट करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले क्षेत्र बना होता है, उसको कहते हैं पंच महाभूत। कौन कौन से होते हैं पंच महाभूत? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। समझे? ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? तो ये पंच महाभूत। पंच महाभूत। तो ये हो गए 5। अच्छा, इसके अलावा 5 सूक्ष्म तत्व भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ठीक है, कितने हो गए? कितने हो गए? अभी तक 8 हो गए। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, ये 5 हो गए ग्रॉस और 3 हो गए सूक्ष्म। अब आगे बढ़ते हैं।
अब 5 सेंसेस, कौन कौन सी सेंसेस है हमारी? 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस कौन कौन सी है? आईज, नोज, ईयर और स्किन, और कौन सा बचा? tongue, टंग। ओके, ये हो गई 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। 5 होती है वर्किंग सेंसेस। वर्किंग सेंसेस होते हैं हैंड्स, लेग्स, माउथ, उसके बाद में जेनिटल्स एंड एनस। 5 होते हैं वर्किंग सेंसेस। कितने हो गए अभी तक? 18। फिर जो 5 विषय थे, ये जो 5 ये थे, ईयर, स्किन, टंग, नोज और आईज। तो आईज का होता है विजन, तन मात्रा कहते हैं। आंख का होता है विजन। नोज का होता है स्मेल। टच का होता है फील। टंग का होता है टेस्ट। और ईथर का होता, साउंड का होता है, मतलब ईयर का होता है साउंड। कितने हो गए? 23। और 24 को कहते हैं, एक वर्ड होता है प्रधान। प्रधान मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये किसी को याद है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर? मैंने बताया था क्लास में कभी। आशुतोष, याद है तुम्हें? तुम आए थे क्लास में। जी प्रभु जी, जो सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। ये सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण, ये हो गए प्रधान। तो कितने तत्व हो गए? 24 तत्व। ये क्षेत्र बना है कितने कितने तत्वों से? ये क्षेत्र 24 तत्वों से बना हुआ है। समझ पा रहे हैं? याद हुआ किसी को? आशुतोष, बता पाओगे? जी प्रभु जी, फिर से क्वेश्चन। क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ ये क्षेत्र 24 तत्वों से बना हुआ है। आप इन 24 तत्वों को रिकॉल कर पाएंगे? जी प्रभु जी, हो जाएगा। बोलो, बताओ। अर्थ, हाँ, वाटर, हाँ, एयर, हाँ, फायर, हाँ। ईथर, ओके। देन माइंड, माइंड, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो। ओके। आई, आई, नोज, नोज, माउथ, माउथ। ईयर। नोज ने, हाँ, आईज, नोज, टंग। जी जी, आईज, आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। हाँ, देन हैंड्स, हैंड्स, लेग्स, लेग्स, जेनिटल्स, जेनिटल्स, एनस, एनस, और माउथ, माउथ। माउथ। माउथ, यस। जो आई से होता है विजन, आईज का विजन, एंड नोज एंड माउथ का मतलब वो नोज का स्मेल, स्मेल, माउथ टंग का स्किन टेस्ट, का फील, स्किन माउथ का का फील, टेस्ट। जी, एंड ईयर का होता है साउंड, एंड साउंड, जो लास्ट वाला होता है प्रधान। प्रधान। ये टोटल कितने तत्व हो गए? 24। 24। ये 24 तत्वों का क्षेत्र है। यहाँ पे ये लिखा है, देखो पढ़ सकते, फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं एक बार। यहाँ पे जो लिखा है, द 5 ग्रेट एलिमेंट्स, ग्रॉस ये वाले हैं। इधर पे कैसे हुआ? 5, पहले तो पंच महाभूत है ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। फिर फॉल्सीगो, इंटेलिजेंस एंड माइंड।
अनमैनिफेस्टेड मोड्स ऑफ नेचर प्रधान, 5 सेंसेस फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, 5 वर्किंग सेंसेस, ठीक है, उसके बाद माइंड, सब गिना दिया यहाँ पे, 5 ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, स्मेल, टेस्ट, फील, टच, साउंड, ठीक है ना। इस तरीके से 24 एलिमेंट्स से बनता है फील्ड ऑफ एक्टिविटी। समझ आ गई ये पैराग्राफ? और ये कहाँ दिया गया है? ये ग्रेट सेजिस ने बताया है, वैदिक हिम्स ने बताया है, वैदिक मंत्रों ने बताया है, और वेदांत सूत्रों ने बताया है। ये हमने नहीं बताया है ना। ये सब, ये 24 तत्वों का बना हुआ क्षेत्र, ये शास्त्रों ने और पुराने साधुओं ने बताया है। इसको सांख्य फिलॉसफी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, 24 एलिमेंट्स को डिटेल में समझना है, इनका इंटरेक्शन को समझना, यही सांख्य दर्शन है, जिसकी समरी भगवत गीता में दी गई है। इसके साथ साथ इस बॉडी में चेंजेस होते हैं, 6 प्रकार के चेंजेस बताए गए हैं। कौन कौन चेंजेस होते हैं? बॉडी जन्म लेती है, कुछ समय बढ़ती है, रहती है, संतान उत्पन्न करती है, धीरे धीरे डिके होती है, और फिर लास्ट में वेनिश, खत्म हो जाती है। तो ये बॉडी या ये क्षेत्र इन 24 तत्वों से बना हुआ है। इस 24 तत्व के क्षेत्र में इस 6 प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। ये क्षेत्र नॉन परमानेंट है, ये परिवर्तनशील है, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, वो इससे भिन्न है और अनचेंजेबल है। समझ आया? ये है सांख्य दर्शन। समझ आ रहा है आप लोगों को? इतना समझ पाए? इसमें हाँ जी प्रभु जी। कीजिए। अमितेश, क्लियर हो गया सांख्य दर्शन क्या होता है? वेदों का दर्शन क्या है? उपनिषदों जी का दर्शन क्या है? केवल इतना दर्शन है उपनिषदों का। कभी कभी आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, अष्टावक्र गीता। लोग सोचते हैं अष्टावक्र गीता में क्या है, भगवत गीता कुछ अधिक बताया गया है? नहीं, यही बताया गया है। किसी भी उपनिषद में केवल ये बताया गया कि ये 24 तत्वों का बना हुआ जो नश्वर शरीर है, वो चेंजेबल है, वो नश्वर है, वो क्षेत्र है, लेकिन उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, जो चेंजलेस है, जो अनादि है, अनंत है, और जो है ना। लेकिन फिर भगवत गीता में एक चीज और बताई गई है कि 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं। जो एक इंडिविजुअल बॉडी को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, और जो सबके शरीरों को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो जो भगवान है वो कैसे क्षेत्रज्ञ है? वो सबको जानता है। समझ पा रहे हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी, ये समझना। पूरे उपनिषदों में ये क्षेत्रज्ञ के विश्लेषण ही किया गया है। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है, मतलब क्या है? उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विश्लेषण करना आना चाहिए, उसको बॉडी और सोल में अंतर समझना आना चाहिए, उसको परमानेंट और टेम्परेरी में अंतर समझ आना चाहिए, उसकी प्रायोरिटीज ऐसे सेट होनी चाहिए। भाई आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूंगा, कौन बताएगा मुझे? अमितेश तुम ही बताओ भाई, बॉडी और सोल दोनों में टेम्परेरी क्या है, परमानेंट क्या है? प्रभु जी टेम्पररी है बॉडी, जो हाँ, स्ट्रक्चर है, और परमानेंट है सोल। ओके, ठीक है। मृत्यु के बाद क्या रहेगा और क्या चला जाएगा? प्रभु जी मृत्यु के बाद बॉडी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सोल रहेगा। सोल रहेगा। कहाँ जाएगा सोल? सोल अगर अच्छा कर्म करेगा तो भगवान के धाम, अगर बुरा कर्म करेगा तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा हाँ, मृत्यु मतलब लोक में। अच्छा कर्म बुरा कर्म के अनुसार उसको शरीर मिलता है। अगर वो शुभ कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, तो उसको अच्छा शरीर मिलेगा। पाप कर्म करेगा तो बुरा शरीर मिलेगा, नारकी जोनी मिलेगी, दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा। और अगर भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान के धाम में जाएगा। 3 ही ऑप्शन है उसके पास, है ना। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर बॉडी टेम्परेरी है और सोल परमानेंट है, तो बॉडी के जो अचीवमेंट्स हैं वो भी टेम्परेरी होंगे, यस और नो? हाँ जी। जी प्रभु जी 100%। और सोल के अचीवमेंट्स परमानेंट होंगे, यस और नो? यस प्रभु जी अच्छा, आप मान लीजिए परमानेंट। कॉलेज में डिग्री लेते हैं, वो डिग्री जो है आपकी कॉलेज की डिग्री, तो वो परमानेंट है कि टेम्परेरी है? वो टेम्पररी है प्रभु जी। टेम्परेरी है, क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद वो डिग्री काम नहीं आएगी। हाँ यस प्रभु जी। आपने बहुत परिश्रम करके मान लीजिए एक बहुत बड़ा महल बनाया, क्या मृत्यु के बाद उसको आप क्लेम कर सकेंगे? नहीं प्रभु जी। नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं होगा कि आप किसने बनाया था, भूल जाएंगे आप। तो कहने का तात्पर्य है कि मेटेरियल अचीवमेंट्स आर यूजलेस इन वन सेंस।
Yes, Prabhuji. तो उपनिषदों में क्यों ऐसा बार बार ये विश्लेषण किया गया है कि हम कि संसार में सभी लोग मेटेरियल अचीवमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं, मेटेरियल कंफर्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, मेटेरियल सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मेटेरियल सक्सेस तो मेटेरियल बॉडी से संबंधित है, मेटेरियल बॉडी टेम्पररी है, तो फिर मेटेरियल सक्सेस का क्या नहीं क्या। लेकिन जो सोल के संबंध में जो अचीवमेंट है वो परमानेंट होगा। तो उपनिषदों में ये क्षेत्र के विभाग, बॉडी और सोल का एनालिसिस, और बॉडी किन वस्तुओं से बनी हुई है इसका एनालिसिस किया गया, इसको सांख्य फिलॉसफी कहते हैं। ये पढ़िए, इसका परपट यहाँ पे पढ़िए आशुतोष, ये लास्ट लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। One can understand that this body is matter. It can be analyzed with its 24 elements. That is the gross manifestation and the subtle manifestation in the mind and the psychological effect and the symptoms of life. And the symptoms of life are the interaction of these features. But over and above this, there is the soul, and there is also the super soul. The soul Yes. and the यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भाई जीवन का परिचय क्या है कि इन 24 तत्वों के आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन ये इंटरेक्शन किसके कारण हो रहा है, जीवन किसके कारण है, सोल के कारण है। तो वहां पे आत्मा का अस्तित्व है, और न केवल आत्मा का अस्तित्व अपितु परमात्मा का अस्तित्व भी है। तो सांख्य फिलॉसफी के कितने एलिमेंट्स हो गए, कितनी काउंटिंग हुई शिवम, सांख्य फिलॉसफी कितनी काउंटिंग हो गई। तो जी 2 सांख्य फिलॉसफी की टोटल कितनी काउंटिंग हुई, टोटल काउंटिंग को 24। 24, समझिए 24 +1 +1 समझे, इट्स नॉट 26, इट्स 24 +1 +1। प्रज्ञान की +1 क्या है, ये वाला +1 बॉडी और सोल। 24 क्या है, एलिमेंट से जिसे हम बने हैं। कि हम मतलब कौन, बॉडी। बॉडी। तो 24 एलिमेंट से बॉडी बनी हुई है, और ये +1 क्या है, प्रभु जी, one is Atma and another is Paramatma. यस। प्रज्ञान समझ नहीं आया, आ गया। 24 एलिमेंट से क्या बना है, बॉडी बनी, बॉडी। और +1 क्या है, मैं, आत्मा, सोल, और +1 क्या है, परमात्मा। परमात्मा। तो ये हो गया टोटल, इसको कहते हैं सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी। समझ गए, ये दिस इज द साइंस। तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि देयर इज सोल एंड अबव दैट देयर इज सुपर सोल। द सोल एंड सुपर सोल आर टू, ये 2 है, आत्मा और परमात्मा, ये 2 है, ये एक नहीं है, 2 है। पढ़ो आशुतोष, क्या लिखा है, दिस मेटेरियल वर्ल्ड, this material world is working by the conjunction of the soul and the 24 material elements. यस। One who can see the constitution of the whole material manifestation as this combination of the soul and material element, and also can see the situation of the supreme soul, becomes eligible for transfer to the spiritual world. यस। तो वास्तविक ज्ञानी कौन है, वास्तविक ज्ञानी कौन है, जो 24 +1 +1 को जानता है, और जो 24 +1 +1 को जानता है, ही बिकम्स एलिजिबल टू ट्रेवल टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब समझ रहे हैं, ये जो ये जानता है 24 क्या है,
आशुतोष 24 क्या है? जी प्रभु जी, these are the, मतलब इन 24 ये क्या क्या Sir, है? these are the tattvas of human body. जस्ट ह्यूमन बॉडी, Tattvas of human body. जस्ट ह्यूमन बॉडी, नॉट तत्व ऑफ बॉडी. तत्व ऑफ बॉडी, एनी बॉडी, इट मे बी डेमीगॉड बॉडी ऑल्सो. तत्व ऑफ बॉडी, okay, this is body, material body, and plus one is, इंडिविजुअल सोल, and plus one is सुपर सोल. super soul. So one who knows this 24 plus 1, he is actually in knowledge. Real knowledge की definition ही होती है जो इन 24 तत्वों को जानता है, आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, वो वास्तविक रूप से ज्ञानी है. And he becomes qualified to enter to the spiritual world. अब मैं इसको ज्ञानी है इसका प्रमाण देता हूँ, परिचय देता हूँ. सपोज करिए कोई व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है, परेशान है जीवन में. उसके बॉस उसको गाली दे रहे हैं, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई है, लोग उसको कुछ कुछ बोल रहे हैं, मतलब ही इज इन प्रॉब्लम. तो ये फिलॉसफी उस व्यक्ति को कैसे हेल्प कर सकती है, मेरा प्रश्न ये है. किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया है, किसी के रिलेटिव की मृत्यु हो गई है, कोई बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहा है, कोई डिजीज हो गया है, ये फिलॉसफी उसको कैसे हेल्प करेगी? जी प्रभु जी, ये फिलोसफी हेल्प करेगी कि द थिंग्स हैपनिंग, जो भी हो रहा है वो टेम्पररी है यहाँ पे. यस, वेरी गुड. टेम्परेरी है, पेरिशेबल है. किसके साथ हो रहा है ये सारी प्रॉब्लम्स? किसके साथ है? ये बॉडी के साथ हो रहा है. बॉडी के साथ है. ये 24 तत्वों में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैं क्या हूं? इंडिविजुअल सोल. और मेरा वास्तविक संबंध किसके साथ है? परमात्मा. परमात्मा के साथ. तो अब ये जो इंडिविजुअल सोल है, एक्चुअली में प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? प्रॉब्लम्स की जड़ है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है. अब ये समझ गए तो मजा आ जाएगा. प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है और समाधान क्या है? ध्यान से देखिएगा आप लोग. ये क्या है? ये क्या है? स्पेस. ये क्या है? Yes. ये है प्रॉब्लम. प्रॉब्लम. ये दिख रहा है, ये क्या है? प्रॉब्लम. और ये क्या है? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन. बस इतने से खेल है. समझ आ रहा है प्रज्ञान जी? हाँ. क्या समझे? ये क्या है? प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है ना. और ये क्या है? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन. क्या सॉल्यूशन है? कि गॉड को ऐड कर दो तो सॉल्यूशन निकल आएगा. गॉड को ऐड कर दो, और साथ में समझ जाओ कि 24 तत्व ये तो चेंजेबल है. यहाँ अच्छा, यहाँ पे सुख दुख हानि लाभ जय पराजय लगा रहेगा. ये लिखा है ना यहाँ पे, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, ये सब किसमें साथ होती है? इसका बॉडी के साथ. बॉडी के साथ, माइंड के साथ. इसका आत्मा से कोई लेना नहीं. यहाँ लिखा है ना, ये देखिए, इधर पे लिखा है, आ गया ये ऊपर, डिजायर, हेट्रेड, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, ये सब किसके साथ है? बॉडी. बॉडी के साथ है, आत्मा के साथ है, सॉरी बॉडी के साथ है, माइंड के साथ है, लेकिन सोल के साथ कुछ भी नहीं है. सोल का तो वास्तविक संबंध किसके साथ है? सुपर सोल के साथ है, सुपर. भगवान. भगवान के साथ है. तो जब तक आत्मा अपने आप को इसके साथ आइडेंटिफाई करेगी और इसको दूर रखेगी, तब तक वो क्या रहेगी? प्रॉब्लम में. और जब वो इधर आ जाएगी, इसको ऐसे कर लेगी, ये रहेगी सॉल्यूशन पे, सुखी रहेगी. सिंपल. और इसको कहते हैं,
इसको कहते हैं, दिस 1 + 1 इज कॉल्ड योग। समत्वम योग उच्यते। योग, योग मतलब जुड़ना। जब आत्मा और परमात्मा के संबंध की स्थापना होती है, इसको कहते हैं योग। समझ पा रहे हैं? और ये जब प्रेम का संबंध होता है, जब वन सरेंडर करता है दूसरे वन को, दैट बिकम्स भक्ति योग। जब वन और वन के बीच में प्रेम का विनिमय होता है, प्रेम का संबंध होता है, ये मास्टर है, ये सर्वेंट है, जब इनके बीच में प्रेम का विनिमय होता है, दैट बिकम्स भक्ति योग, दैट योगा ऑफ लव। तो कहते हैं द योगा ऑफ लव, एंड दैट इज द solution of all problems. समझ पाए आशुतोष जी? हाउ सांख्य फिलोसफी कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स? जी गुरुजी। इसको समराइज कर लेंगे यहाँ पे, पॉइंट्स रिमेम्बर पढ़ो। गुरुजी थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। ओके, यस। The first step in spiritual science is to know the difference between a living body and a dead body. The difference is that when someone dies, the spirit, soul, or the living force leaves the body. Therefore, the body is called dead. Only the material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is subject to destruction. For the soul, there is never birth or death, nor having once been. Does he ever cease to Cease be? to be. ऐसा कभी नहीं था कि वो नहीं थी। Cease to be, yes. He is on one, eternal, ever existing, undying, and primeval. He is not slain when the body is slain. बॉडी की तो ये- मृत्यु होने बाद भी बॉडी को काट भी दिया जाए तो आत्मा नहीं कटती, आत्मा वही है, वही वैसे ही है। और ये है कंपोनेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस बॉडी, है ना। 5 ग्रेट एलिमेंट्स, महाभूत, उसके बाद नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट्स, सटल और वर्किंग सेंसेस, अनमैनिफेस्ट मोड्स ऑफ मेटल नेचर कॉल्ड प्रधान। ये 24 तत्वों से क्या बना हुआ है? ये पूरा शरीर बना हुआ है, ये पूरा जगत बना हुआ है, और इसी के विश्लेषण को कहते हैं सांख्य योग। पढ़ो, 5th पॉइंट क्या है? One who can see the constitution of the whole material manifestation as this combination of the soul and material element, and also can see the situation of the supreme soul, becomes eligible for transfer to the spiritual world. वाओ, वास्तविक रूप में वही ज्ञानी है। सिंपल, समझ गए? फिलॉसफी कठिन लगी, डिफिकल्ट है, सरल है? सारे उपनिषदों का सार है ये, सारे वेदों का सार है ये। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहते हैं इसको। 13 चैप्टर का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इससे संबंध किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हम यहीं तक रखेंगे आज, आगे नहीं बढ़ेंगे। हैवी डोज है ये, ज्यादा कठिन नहीं, थोड़ा सा, लेकिन सांख्य आपको 24 तत्वों के नाम याद रखने पड़ेंगे। किसी का इससे संबंधित कोई प्रश्न है? जो आज हमने पढ़ा, इससे संबंधित किसी के मन में कोई जिज्ञासा है? समझ आ गया? प्रज्ञांत, अमितेश, आशुतोष, शिवम, सुमन, जी प्रभु जी। है ना। इसको कहते हैं सांख्य फिलॉसफी। तो आज हमने सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन पढ़ा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी प्रभु की। जी मेरा एक प्रश्न है। यस यस प्रभु। प्रभु जी
एक फिलोसफी या अद्वैत उसने बोला कि आ, खाली एक ही चीज है, वो सॉल है। हाँ, और अहम ब्रह्मास्मि कि वो सॉल ही ब्रह्म है। यस। और तो यहाँ क्या, यहाँ बताया गया है भगवत गीता में, क्या बता रहे हैं? यहाँ पे भी पता है कि दो चीज है, एक सॉल कौन? और एक, हाँ, सुपर एक सोल। भगवान। तो प्रभु यस। जी वो फिलोसफी को क्यों नहीं मानते हम लोग, और हाँ, ये फिलोसफी क्यों एक्सेप्ट करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अमितेश, क्वेश्चन समझ आया? नहीं प्रभु जी। नहीं समझ आया? नहीं प्रभु जी, एक बार फिर से रिपीट करिए तो, कौन बोल रहे हैं? शिवम प्रभु बोल रहे। प्रज्ञान, तुम्हें समझ आया क्वेश्चन? नहीं। आशुतोष, जी प्रभु जी, समझ में आया। समझ आया? समझाओ क्वेश्चन, पैराफ्रेज करो। मतलब जो बोले कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम ही ब्रह्म है, बट हम्म। अज्ञान से नहीं पा रहे हैं, बट हम ही ब्रह्म है, मतलब एक ही सोल है, वो ये बता रहे हैं। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? आ, प्रभु जी मुझे लगता है हम वो सोल का जस्ट एक पार्ट है। ओके, क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले मैं। अमितेश और प्रज्ञान को समझ नहीं आया, ध्यान से सुनिए। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एक फिलॉसफी होती है उसको कहते हैं अद्वैत। अद्वैत, द्वैत मतलब, द्वैत मतलब दो। अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट एक मिनट। मैं, यस, एक फिलॉसफी उसको कहते हैं अद्वैत। अद्वैत मतलब, द्वैत मतलब, द्वैत मतलब मुझे दो। 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 तो अद्वैत मतलब नॉन डुअल, नॉन डुअल, दो नहीं है, है ना? इस फिलॉसफी किसने दिया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने पूछी। यस, दिस फिलॉसफी आदि शंकराचार्य। नाम सुना इनका, आदि शंकराचार्य का, आशुतोष? जी गुरु जी। देखे इनके फोटो कभी? जी आप नहीं दिखाए थे। यस, आदि शंकराचार्य। तुम्हें अच्छा मेमोरी तुम्हारा, हाँ, याद रहता है। ये है आदि शंकराचार्य। प्रज्ञात, इन्होंने फिलॉसफी दी है, आदि शंकराचार्य ने, अद्वैत फिलॉसफी। दिख रहे हैं ऐसे? फोटो देखा होगा इनका, कई बार आप लोग देखा होगा, हाँ। है ना? ये है आदि शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैत का फिलॉसफी दिया, जिसमें वे कहते हैं कि दो नहीं है भैया, एक ही है, एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। लेकिन हम तो आज सुने दो है, इन्होंने ऐसा क्यों बोला? और फिर एक वर्ड, एक फेमस स्टेटमेंट होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो क्या मैं ब्रह्म हूं? तो क्या मतलब है इसका? अब ध्यान से समझ लीजिए भैया। जबकि भगवत गीता में तो भगवान कह रहे दो होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक फिलॉसफी दी है, जिसका नाम है साइमल्टेनियस वन एंड डिफरेंट। साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट मतलब, है ना, एक साथ, एक भी है और अलग भी है। भाई एक भी और अलग है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? है ना, इसको कहते हैं अचिंत्य। अचिंत्य, अचिंत्य मतलब हमारे चिंतन से परे है। अचिंत्य, भेद, अभेद। इस फिलॉसफी का नाम अचिंत्य भेद अभेद। मतलब भेद भी है और अभेद भी है, डिफरेंट भी है और नॉन डिफरेंट भी है। शंकराचार्य ने फिलॉसफी दी अभेद, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने फिलॉसफी दी अचिंत्य, अभेद और भेद, भेद अभेद। मतलब अलग भी और एक भी। कैसे? इसका एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा। तो एग्जाम्पल है कि जैसे होता है गोल्ड माइन, एक होता है गोल्ड पार्टिकल। दोनों में क्या अंतर है आशुतोष? प्रभु जी गोल्ड माइन पे हम गोल्ड निकालते हैं। प्रभु जी कुछ अंतर नहीं है। कुछ अंतर नहीं है। तो अगर कुछ गोल्ड अंतर, माइन
निकलता है। अगर कुछ अंतर नहीं है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? यस प्रभु जी, लिख सकते हैं एकदम। लिख सकते हैं, श्योर? हाँ जी प्रभु जी, क्योंकि गोल्ड माइन से ही गोल्ड पार्टिकल निकलता है। मैं ये लिख सकता हूँ, गोल्ड माइन इज इक्वल टू गोल्ड पार्टिकल? प्रभु जी आई थिंक नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अमितेश गोल्ड बता, माइन। अमितेश तुमने जी कहा प्रभु जी। एक ही है, क्या गोल्ड माइन को इज इक्वल टू गोल्ड पार्टिकल लिख सकता हूँ, यस और नो? हमको लगता है प्रभु जी लिख सकते हैं। अच्छा, एक काम करो, अपनी मम्मी से फोन लगा के पूछो कि मम्मी आपके सोने का, मैं एक सोने का पार्टिकल आपको दूंगा, आप मुझे सोने का हार दे दीजिए, मम्मी क्या करेंगी? नहीं हो पाएगा प्रभु जी। क्यों? तो अभी तो बोल रहे हो इक्वल है। समझ आया? अब पॉइंट समझो। अगर जी जब प्रभु हम जी। करें गोल्ड माइन इज इक्वल टू गोल्ड पार्टिकल, सो यू गिव अ गोल्ड पार्टिकल टू योर मम्मी एंड टेक हर गोल्ड necklace. What to say of mine? Will she allow? नो प्रभु जी। No. एक बार 1972 में, ठीक है, तो इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा था, अर्ध कुंभ, ठीक है। तो उस समय प्रभुपाद जी वहां पे गए थे। तो वहां पे एक ठंड का मौसम लगता है, 12 मतलब माघ का महीना, मतलब जनवरी के महीने में माघ मेला लगा था, या ये कुंभ मेला जो भी है। तो बहुत ठंड का समय रहता है वहां पे जनवरी में। यूपी की ठंड बहुत ठंड बुरी होती है। तो एक साधु था, तो साधु कह रहा था सब एक है, सब एक है, सब एक है, अद्वैत अद्वैत अद्वैत। तो प्रभुपाद जी ने उसको बुलाया, तो वो आया प्रभुपाद जी से मिलने के लिए उनके आश्रम, मतलब प्रभुपाद जी के पंडाल में। तो वो एक ब्लैंकेट पहन के आया था, ब्लैंकेट, एक है ना, एक चादर उसने ओढ़ी हुई थी, मोटी सी चादर। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को कहा कि साधु की चादर खींच लो और उसको एक धागा पकड़ा दो। अब वो साधु की चादर खींच लियो, धागा पकड़ा दिए। अब वो साधु ठंड में ठिठुर रहा है। तो अब प्रभुपाद जी ने कहा भाई अभी तो तुम बोल रहे थे कि है कि धागा और चादर एक है, सब एक है, सब एक है। तो सब एक है तो धागा और चादर एक है। और अगर धागा और चादर एक है तो जो काम चादर से होता है तो धागे से करो, कर पाओगे? बताइए, हो पाएगा अमितेश जी? अगर एक है तो, इफ गोल्ड पार्टिकल इज इक्वल टू गोल्ड माइन, देन गोल्ड का एक छोटा सा पार्टिकल अगर तुम्हारी मम्मी को देंगे, तुम्हारी मम्मी गोल्ड नेकलेस तुम्हें दे देंगी? नहीं प्रभु जी, नहीं हो नहीं, पाएगा। नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है ना? इसी तरह के दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं, दूसरा एग्जाम्पल है सन एंड सनशाइन, दोनों एक है कि अलग है? कंफ्यूज हो रहा है? एक है कि अलग है? आशुतोष क्या लगता है, एक है कि अलग है? नहीं प्रभु जी, अलग तो है। कैसे अलग है? सनशाइन बस एक उसका आ, हाँ, एक पार्टिकल मात्र है ना? मतलब है। तो देखिए, अंतर, सिमिलरिटी, सिमिलर इन क्वालिटी बट डिफरेंट इन क्वांटिटी। ये इसको कहते हैं साइमल्टेनियसली, एक भी है और अलग भी है। सन और सनशाइन एक है, किसमें एक है? क्वालिटी में एक है। पर सन और शाइन, सनशाइन अलग है, किसमें अलग है? क्वांटिटी में अलग है। समझ आ रहा है? अमित समझ आ रहा है? गोल्ड माइन और गोल्ड पार्टिकल एक है, किसमें एक है? क्वालिटी। क्वालिटी में एक है। लेकिन किसमें डिफरेंट है? क्वांटिटी में। क्वांटिटी में डिफरेंट है। तो शिवम समझ आ गया? अद्वैत सत्य है, किस सेंस में सत्य है? कि आत्मा और परमात्मा एक है, किस सेंस में एक है? क्वालिटी में प्रभु जी। क्वालिटी में। शिवम समझ आ रहा है? हाँ प्रभु जी। आत्मा और परमात्मा एक है, किस सेंस में एक है? क्वालिटी में एक है। भाई जिस जिस वस्तुओं से परमात्मा बनी हुई है
उसी वस्तु से आत्मा बनी हुई है, सच्चिदानंदमय। परमात्मा भी सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है। परमात्मा पूर्ण चेतन है, आत्मा भी पूर्ण चेतन है। तो एक है किस सेंस में? क्वालिटी में, लेकिन डिफरेंट है किस सेंस में? क्वांटिटी में। यानी आत्मा कभी ये नहीं बोल सकती कि मैं परमात्मा के बराबर हूं। समझ आया आशुतोष जी? समझ आया ये पॉइंट? प्रज्ञान जी समझ आ रहा है पॉइंट? जी प्रभु हाँ पूरा। परमात्मा एक है किस सेंस में? एक है इस सेंस में एक है कि वो क्वालिटी में एक है, लेकिन डिफरेंट है किस सेंस में? डिफरेंट है क्वांटिटी में। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्षेत्र क्षेत्र के विभाग। आत्मा अपने शरीर का अपने शरीर का क्षेत्रज्ञ है, लेकिन परमात्मा सबों के शरीर के क्षेत्रज्ञ है। तो एक कैसे हुए? यही प्रमाण है ना। आत्मा केवल अपने शरीर को जानता है, लेकिन परमात्मा सभी के शरीरों को जानता है। आत्मा के अंदर भी सृष्टि करने की क्षमता है, परमात्मा के अंदर भी सृष्टि करने की क्षमता है। लेकिन परमात्मा की सृष्टि करने की क्षमता कितनी विशाल है। भगवान, हम स्विमिंग पूल बनाते हैं, वो समुद्र बनाते हैं। हम 2 माले की बिल्डिंग बनाते हैं, बुर्ज खलीफा बनाते हैं, वो मल्टी प्लेनेटरी सिस्टम बना देते हैं। हम पेन ड्राइव बनाते हैं, हार्ड डिस्क बनाते हैं, चिप बनाते हैं। भगवान न्यूरॉन बना देते हैं, डीएनए बना देते हैं। तो हमारे अंदर भी सृष्टि करने की क्षमता है, उनके अंदर भी सृष्टि करने की क्षमता है। हमारी क्षमता सीमित है, उनकी असीमित है। वी आर जस्ट लाइक अ पार्टिकल and he is infinite. So quality wise we are same as that of God, but quantity wise we are different. तो अहम ब्रह्मास्मि, यस, ब्रह्म मत, ब्रह्मन के कई मीनिंग होते हैं। ब्रह्म का एक अर्थ तो होता है सोल, ब्रह्म का एक और अर्थ होता है गॉड। तो अहम ब्रह्म ये सही है बिकॉज आई एम सोल, बट अहम ब्रह्म ये इसलिए सही नहीं कि आई एम नॉट गॉड। अहम ब्रह्मास्मि किंतु अहम न परम ब्रह्मास्मि, इसलिए 2 वर्ड बोले हैं, ब्रह्म एंड परम ब्रह्म। ये सुना ये वर्ड? ये वो 2 हाँ वर्ड प्रभु। सुने, ब्रह्म और पर ब्रह्म। ये पर ब्रह्म किसके लिए यूज किया गया है? भगवान के लिए यूज किया गया है। ब्रह्म मतलब आत्मा, पर ब्रह्म मतलब भगवान। कहाँ यूज किया गया है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। परम ब्रह्म, हाँ, परम धाम। ये देखिए, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दैवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन कृष्ण कह रहा है यू आर सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप परम ब्रह्म हैं, ये वर्ड आया है परम ब्रह्म। तो अहम ब्रह्मास्मि किंतु कृष्ण इज परम ब्रह्म। शिवम आंसर मिल गया? हाँ प्रभु जी। तो वी आर, अद्वैत का सिद्धांत कहां तक ठीक है? ये दिख रहा है, ये श्लोक दिख रहा है आप लोग को? हम परम ब्रह्म परम धाम। नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? अरे एक मिनट, ये दिखना चाहिए, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अब दिख रहा है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम। अर्जुन बोल रहे हैं आप परम ब्रह्म है भगवान। समझ रहे वर्ड? तो अहम ब्रह्मास्मि ये सत्य है, अहम ब्रह्म है, लेकिन परम ब्रह्म कौन है? कृष्ण है। हम आत्मा है, वे परमात्मा है, हम उनके अंश मात्र हैं। जैसा कि आशुतोष ने बोला है ना, हम उनके क्या हैं? अंश हैं। और ये बात भगवान खुद बोल रहे हैं, अर्जुन तुम मेरे अंश हो, ममेव अंशो, तुम मेरे अंश हो।
जीवात्मा परमात्मा का एक अंश मात्र है, क्योंकि उनका अंश है तो क्वालिटी वाइज उनके जैसा ही है, पर क्वांटिटी वाइज बहुत छोटा है, बहुत नगण्य है। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो हाँ गया? प्रभु जी। अमितेश क्लियर हो गया? हम एक हैं कि अलग हैं? अमितेश, हम भगवान से एक हैं कि अलग हैं? प्रज्ञान, हम एक हैं कि अलग हैं? एक है। एक है प्रभु जी, एक हैं लेकिन बहुत मानता नहीं है कोई, मतलब मतलब बिलीव नहीं करते सब लोग क्या? कि हम भगवान से मतलब एक है हम लोग। एक है कि अलग हैं? एक है प्रभु। आशुतोष सही क्या है, एक है कि अलग है? जी एक ही है बस, वो जो बोले आप, क्वांटिटी के डिफरेंस है। हाँ, तो फिर बोलो, पूरा बोलो, आधा मत बोलो। ये ध्यान रखना, कभी भी वैष्णव फिलॉसफी में हम ये नहीं बोलते कि हम एक हैं, हम बोलते हैं क्वालिटी वाइज एक है लेकिन क्वांटिटी वाइज अलग है। कोई आपसे पूछे आप भगवान से एक है कि अलग है, तो क्या जवाब दोगे? क्वालिटी वाइज एक है लेकिन क्वांटिटी वाइज बहुत छोटा है हम लोग। ये है पूरा आंसर, कभी भी पूरा आंसर देना। जो मायावादी दार्शनिक होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, उनसे पूछो आप और भगवान एक है, बोलो हम एक है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते हम एक है, हम पूरा आंसर देते हैं। हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं आशुतोष? जी प्रभु जी, हम भगवान के एक अंश से बोलते हैं। हाँ, हम बोलते हैं उनके साथ क्वालिटी में एक है और क्वांटिटी में नगण्य है, छोटे हैं, एक नहीं है। शिवम, पूरा आंसर क्या है? कोई आपसे पूछे आप और भगवान एक है कि अलग है, तो क्या आंसर देंगे? प्रभु जी, हम और भगवान एक हैं क्वालिटी वाइज, बट क्वांटिटी में अलग हैं, छोटे हैं। बस, ये है कंप्लीट आंसर। तो कभी भी कोई पूछे तो उसको कंप्लीट आंसर देना। तो अद्वैत फिलोसफी को हम कैसे मानते हैं कि हम भगवान से क्वालिटी में एक हैं लेकिन क्वांटिटी में हम उनके दास हैं, छोटे से, इनफाइनाइट स्मॉल हैं। वो सूर्य के समान है, हम एक एक सूर्य के कण मात्र है, एक किरण मात्र है। ठीक है ना? वो समुद्र के समान है, हम समुद्र में एक उनकी एक बूंद के समान है। है ना? वो गोल्ड माइन के जैसे हैं, हम एक गोल्ड पार्टिकल की तरह है। ठीक है, तो क्वालिटी वाइज हम उनके जैसे ही है, वो भी सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम नगण्य हैं, छोटे हैं। और नगण्य को क्या करना चाहिए विभू के सामने? कोई छोटे को बड़े के सामने क्या करना चाहिए? प्रभु जी झुक कर रहना चाहिए, झुक जाना चाहिए, रिस्पेक्ट। सरेंडर। झुकना मतलब सर अंडर, सरेंडर करना चाहिए। इसी को भक्ति कहते हैं। तो ये नेचुरल पोजीशन है हमारे लिए, भक्ति नेचुरल है। क्यों? क्योंकि हम छोटे हैं, वो बड़े हैं, हम उनके सामने झुकते हैं, बस बात खत्म। और कोई व्यक्ति बोले नहीं मैं नहीं मानता वो मैं छोटा हूं, मैं उनके बराबर बनना चाहता हूं, तो वो कौन है? वो असुर है, वो राक्षस है। जी प्रभु। तो राक्षसों भगवान की कोई नहीं। राक्षसों की फिलॉसफी है कि मैं भगवान को हटा करके भगवान बनना चाहता हूं, मैं भगवान के बराबर बनना चाहता हूं। इसको, ये असुरों की फिलॉसफी है। तो आज भी ऐसे दार्शनिक हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, सब एक है। ये असुरों की फिलॉसफी है। ये असुर हैं जो भगवान को बड़ा नहीं मान करके अपने आप को भगवान के बराबर बताते हैं। हमारी फिलॉसफी क्या है? वैष्णव दर्शन क्या है? हम भगवान के बराबर नहीं है, हम भगवान के दास हैं। क्लियर? ठीक है शिवम, इज इट आंसर टू योर क्वेश्चन? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा।